ایک بزدل دشمن وہی کرتا ہے جو فرحت جیسی گھٹیا عورت نے کیا۔ اس نے کیا کیا، سارا کی کمزوری ڈھونڈی۔ سارا یا زارا دونوں میں سے کسی کی بھی کمزوری ہے ڈھونڈنا چاہتی تھی، کیونکہ دونوں کی وجہ سے اس کی زندگی اب اجیرن ہو چکی ہے۔ اس کی سچائی کبھی بھی سب کے سامنے آ سکتی ہے، اور کون چاہے گا کہ اس کا اصلی چہرہ جو مکاری ہے اس کی سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح فرحت بھی چاہتی ہے کہ ابھی وہ مزید اپنے کھیل کھیلے، اپنے بھائی کی زندگی برباد کرے، اس گھر کو مکمل طور پر برباد کرنا چاہتی ہے۔ فرحت نے مظہر علی شاہ کی پوری فیملی کو برباد تو کر رکھا تھا، 20 سال تک یہ دونوں ایک دوسرے سے دور رہے۔ مظہر علی شاہ اور شازیہ کی بات کر رہا ہوں، یہ 20 سال تک ایک دوسرے سے دور رہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف فرحت کی گھٹیا چالوں کی وجہ سے، جو ابھی تک قائم ہے۔ ابھی تک یہ اپنی گھٹیا چالیں چل رہی ہے۔ اب یہ فرحت جیسی گھٹیا عورت کیا کرتی ہے، جب وکاس یعنی وکی اسے ساری بات بتاتا ہے، ساری بات غلط بتاتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، کیونکہ سارا کو تو اس نے کڈنیپ کروایا تھا، اسی نے پکڑا تھا اسے زارا سمجھ کر۔ یہ اپنے منہ سے اپنا جرم تھوڑی قبول کرے گا، اپنی غلطی تھوڑی مانے گا، اسی لیے یہ غلط بیانی کرتا ہے، پھپھو کو کچھ اور ہی بتا دیتا ہے۔ فرحت کو وہ کچھ یوں جھوٹی کہانی بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ سارا آئی حیدرآباد، وہاں پر آنے کے بعد کچھ لڑکوں نے اسے تنگ کیا، بلکہ اسے تو کڈنیپ کر کے لے گئے۔ کڈنیپ کر کے جب لے گئے تو کسی طرح وکی نے اسے دیکھ لیا، ایک لڑکی کو کوئی تنگ کر رہا ہے، اسے کڈنیپ کر کے باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد وکی جاتا ہے، اسے بچاتا ہے، ایک ہیرو کی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے، اسے بچا کر لے آتا ہے، یہ ساری کہانی سناتا ہے۔ اب یہ وکی اپنے منہ سے تھوڑی کہتا کہ ہاں میں نے اسے کڈنیپ کروایا تھا، جھوٹ ہی بولنا تھا اسے۔ جب فرحت اسے پوچھ رہا ہے، اسے بتانا بھی ہے اور ساتھ جھوٹ بھی بولنا ہے۔ ویسے وکی نے یہ کہانی بنا کر بیوقوفی کی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ زارا اور سارا کی پھپھو ہے یہ فرحت، اور یہ ضرور انہیں تنگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ اس سے پوچھ رہی ہے۔ جب یہ اسے بتا رہا ہے جھوٹی کہانی، تو وہ وہاں پر جا کر تماشا تو کریٹ کرے گی، جس کے بعد زارا کیوں خاموش بیٹھے گی، وہ وکی سے پوچھے گی آخر اس نے ایسا کیوں کہا، کیونکہ زارا کو تو یہ معلوم ہے، اس کی بہن سارا اور سرمد اور وکی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ سارا کو اس نے کڈنیپ کیا تھا، کسی تیسرے کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو یہ ضرور گھٹیا شخص وکاس ہی ہوگا جس نے سب کچھ اسے بتایا ہے، اور وہ بھی جھوٹی کہانی۔ پھپھو کے پاس تو اچھا موقع آ چکا ہے، وہ سارا کے کریکٹر کو برا ثابت کر سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے، اسے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتاتی ہے، جس کے بعد مظہر علی شاہ پہلے تو یقین نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ اسے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ایک اکیلی لڑکی جب رات کو باہر نکلے گی، لڑکے اسے تنگ کریں گے، کچھ بھی ہو سکتا تھا وہاں پر۔ تو اس کے بعد اس کے ذہن میں باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے بھی سمجھ نہیں آتی اس کی بیٹی سارا نے اسے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا، آخر کیوں انجام رکھا اس سب سے، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ بٹ اس کے بعد آپ لوگ دیکھنے والے ہیں سارا کی یہ بہت بڑی مصیبت کھڑی کرنے والی ہے پھپھو۔ بات صرف اسی مصیبت کی نہیں ہے، بلکہ زارا کے اوپر بھی ایک مصیبت آن پڑی ہے۔ اس کی بہن نے یہ کہا ہے اپنی بہن زارا سے کہ وہ اس کی شادی کروا دے، وہ بھی عادل کے ساتھ، جس سے زارا محبت کرتی ہے، اسے شادی بھی کرنا چاہتی ہے۔ زارا تو آلریڈی بہت زیادہ پریشان ہے، جب اس کے سامنے یہ بات آئے گی کہ پھپھو نے یہ سب مسئلے کریٹ کر لیا ہے، اس نے اس کے بابا کو یہ غلط کہانی بتائی ہے، تو اس کے بعد وہ اور زیادہ پریشان ہوگی۔ اب اسے یہ سارے مسئلے سالو کرنے ہیں، پھپھو کی حقیقت سب کے سامنے لانی ہے، یہ سارا معاملہ کلیئر کرنا ہے اپنے منہ سے۔ جب وہ یہ ساری بات بتائے گی، اس کا بابا تو اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے پہلے تو سب کچھ چھپایا، کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب وہ اچانک سے ساری سچائی بتائے گی تو کون اس کی باتوں پر یقین کرے گا، وہ بھی بغیر ثبوت کے۔ ابھی تک تو زارا کو کچھ بھی نہیں معلوم، اسی لیے یہ صرف اور صرف عادل کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ زارا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، جاتی ہے عادل کے پاس۔ عادل سے جب وہ بات کرتی ہے کہ سارا تم سے محبت کرتی ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اسی لیے اب میں بھی چاہتی ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو اور تم مجھے بھول جاؤ۔ اب زارا کے منہ سے یہ بات سننے کے بعد عادل تو دنگ ہی رہ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ زارا جو اس سے محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی تھی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جب ٹائم سپینڈ کرتے تھے دونوں ہی خوش ہوتے تھے، بٹ اچانک یہ سب کچھ کیا ہو گیا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم سارا سے شادی کر لو، اسے چھوڑ دو۔ عادل کہتا ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، تو آخر میں سارا سے شادی کیوں کروں گا، ہم دونوں شادی کریں گے۔ اس کے بعد زارا کہتی ہے کہ میرے لیے سب سے عزیز جو ہے نا میری بہن اور میری فیملی کی خوشیاں ہیں، اسی لیے میں اپنی بہن کو اداس نہیں دیکھ سکتی۔ عادل کے لیے تو یہ شاکنگ ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ خود اس سے کہہ رہی ہے کہ مجھے بھول جاؤ اور سارا سے شادی کر لو۔ بٹ یہاں پر عادل صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، اسی لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن زارا کہتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری بہن نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں اس کی شادی تم سے کروا دوں، اس کی یہ خواہش ہے، وہ تم سے بچپن سے ہی محبت کرتی ہے اور میں اس کی خواہش کی قدر کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میری بہن کو تکلیف ہو، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ جب عادل زارا کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے تو زارا کہتی ہے کہ یہی تھی تمہاری محبت، بس ختم ہو گئی، جب میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ سارا سے شادی کر لو، کیا تم میری ایک بات نہیں مان سکتی؟ اس کے بعد عادل کرے بھی تو کیا کرے، اس کی محبت سامنے سے کہہ رہی ہے کہ تم میری ایک بات نہیں مان سکتے۔ اس کے بعد عادل خاموش ہو جاتا ہے۔
यानी कि वो राजी है। सारा का और आदिल का मजहर अली शाह ने रिश्ता तो तय कर दिया है, रिश्ता तो तय हो चुका है। असल दुश्मन जो है ना इस रिश्ते का, वो सारा की माँ है। उसकी अपनी माँ ही नहीं चाहती कि ये शादी हो। वो आदिल से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहती। अगर ज़ारा सारा को खुश देखना चाहती है, उसकी बात मानना चाहती है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये अपनी माँ को मनाए, उसे कहे कि वो ये शादी ना रोके, इस शादी के लिए राज़ी हो जाए। ज़ारा जाती है अपनी माँ के पास, उसके पास बैठती है, उससे पहले हाल हवाल करती है और उससे बात करती है। कहती है कि मामा आखिर आप क्यों ये शादी रोकवाना चाहती हैं, जबकि आपको मालूम है कि सारा आदिल से कितनी मोहब्बत करती है, फिर भी आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की शादी उससे ना हो। आदिल बहुत ही अच्छा इंसान है, वो अपनी माँ पर बिल्कुल भी नहीं गया। मगर शाजिया कहती है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद क्यों करना चाहूँगी, चाहे सारा आदिल से मोहब्बत ही क्यों ना करे, मैं उसकी शादी आदिल से नहीं होने दूंगी। क्योंकि मैं फरहत को जानती हूँ, वो कितनी घटिया औरत है, और उसके बेटे में भी उसकी खून का कुछ ना कुछ असर तो होगा ना। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन ज़ारा उसे समझाती है, आपकी बेटी की खुशी सिर्फ और सिर्फ आदिल में है। अगर आप अपनी बेटी सारा को खुश देखना चाहती हैं, तो आपको इस शादी के लिए राज़ी होना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी ज़िंदगी भर यूं ही मायूस रहे, तो आप ना करो, तो आप ये शादी रोक दें। इसके बाद अब लोग कहने वाले हैं कि शाजिया तो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती है। उसके जहन में भी ये बात बैठ जाती है कि इसकी बेटी तो हाँ वाकई आदिल से मोहब्बत करती है और शादी करना चाहती है। वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है आदिल के साथ। मगर इसके बाद शाजिया कहती है कि क्या आदिल उससे शादी करना चाहता है, हो सकता है कि आदिल इस सारा से शादी ना करना चाहता हो। इसके बाद ज़ारा उसे बताती है कि क्यों नहीं करना चाहेगा, मेरी बहन इतनी प्यारी जो है, उससे शादी करने से कौन इनकार करेगा। मैंने आदिल से पूछ लिया, वो इस शादी के लिए राज़ी है, बस आप राज़ी हो जाएं। इसके बाद शाजिया कहती है कि अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं सोच कर बताऊंगी, अभी मैं शादी नहीं रोक रही। इसके बाद आप लोग दिखने वाले हैं कि शाजिया से जब मिलेगी फूफो यानी कि फरहत जैसी घटिया औरत, वो साफ साफ उसे ब्लैकमेल करेगी। उसे बताएगी कि भाईजान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उन्होंने घर से भागकर यहाँ पर आने वाली लड़की को तो माफ़ कर दिया, मगर वो घर से भागने वाली लड़की को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, खासतौर पर उसे जिसे किडनैप किया गया। और बाद में कुछ लड़के उसे बचाते हैं और आज वो घर आकर बताते हैं कि सारा को उन्होंने बचाया था। अब लड़के यहाँ पर आकर सारा का नाम लेंगे, हमारी कितनी बदनामी है इसमें। ये बात सुनने के बाद शाजिया कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। इसके बाद फरहत भी समझ जाती है कि इसे भी कुछ भी नहीं मालूम, ये भी अनजान है इन सब की तरह। इसके बाद ये इसके साथ भी गेम खेलेगी, इसे सब कुछ गलत बताएगी जिस तरह विकी ने इसे बताया था। फरहत उसे बताती है वो सारी स्टोरी कि किस तरह सारा भागकर घर से गई और वहाँ पर उसे कुछ लड़कों ने तंग किया, बल्कि किडनैप कर लिया, फिर विकी ने उसे बचाया। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद शाजिया कहती है ये कैसे हो सकता है, सारा ने मुझे भी कुछ नहीं बताया, यहाँ पर भी किसी कुछ नहीं बताया, ये कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसके बाद फरहत कहती है कि आखिर कौन लड़की होगी जो अपने ही मुंह से अपनी ही बेइज्जती करवाएगी। कोई लड़के रात को इसे अगवा करके ले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं और फिर अनजान लड़के आते हैं, इसे बचाते हैं। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है, वहाँ ना जाने क्या क्या हुआ होगा। ये बात सुनने के बाद शाजिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है फरहत पर। फरहत कहती है खामोश रहें, ये आपका घर नहीं है, ये मेरे भाई का घर है और यहाँ पर मेरी चलती है और मेरे भाई की चलती है। ये बात सुनने के बाद शाजिया कहती है कि शायद तुम भी भूल रही हो कि मैं आपके भाई की बीवी हूँ, ये मेरा भी घर उतना है जितना कि मज़हर अली शाह का। ये बात सुनने के बाद फरहत कहती है कि मगर मेरे भाई तो आपको अपनी बीवी मानते ही नहीं, इतने साल 20 साल आप उनसे दूर रही, फिर भी आप कह रही हैं कि आप इसकी बीवी हैं, ये हो ही नहीं सकता, ये घर आपका नहीं है। ऐसा ना हो कि इस घर से आपको धक्के देकर निकालना पड़े, खुद ही यहाँ से चले जाएं तो अच्छा होगा, इज्जत से जाएंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी। इसके बाद शाजिया कहती तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वैसे भी मैं अपनी बेटी से पूछूंगी ये सब कुछ सच है या फिर नहीं, अगर ये सब कुछ झूठ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा मैं वो शर करूँगी तुम जिंदगी भर याद रखोगी। तुमने शुरू से लेकर आज तक जितना मुझे तंग किया है ना, उस सब का बदला लूंगी। इसके बाद फरहत कहती है कि जाओ जाओ, शौक से जाओ अपनी बेटी के पास और उसके काले करतूत सुनकर आओ। दूसरी तरफ मज़हर अली शाह भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी बेटी के लिए। उसके जहन में भी सिर्फ एक सवाल होता है कि आखिर इसकी बेटी ने इसे झूठ क्यों बोला, इसे सारी सच्चाई क्यों नहीं बताई कि इसे किसी ने किडनैप किया था, क्यों ये सब कुछ छुपाए रखा, आखिर क्या बात है। ये सारे सवाल आखिरकार मज़हर अली शाह को मजबूर कर ही देते हैं कि ये अपनी बेटी के पास जाए, उससे सवालात करे, उससे पूछे कि आखिर इसने झूठ क्यों बोला, सारी हकीकत जाने। इसके बाद मज़हर अली शाह जाता है सारा के पास। उसके पास जाने के बाद उससे पूछता है जब तुम ये घर छोड़कर गई थी, जब इस घर से भागी थी तुम, हैदराबाद में तुम्हें किसी ने किडनैप किया था। इसके बाद सारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, हैरान होती है कि इसे किसने बताया ये सब कुछ। वो कहती है कि बाबा आपको किसने बताया। इसके बाद मज़हर अली शाह तो समझ जाता है कि सारा को किसी ने किडनैप तो किया था, ये बात तो सही है। मगर फिर मज़हर अली शाह पूछता है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, तुम्हें किसी ने किडनैप किया था, क्यों छुपाया मुझसे ये सब कुछ, आखिर वहाँ पर क्या हुआ था ऐसा जो तुमने किसी को नहीं बताया। इसके बाद सारा उसे बताती है कि मैं डरी हुई थी क्योंकि मैं पहले भी आपको बताकर नहीं गई थी इस घर से, और फिर उन लोगों ने मुझे किडनैप भी कर लिया।
जब ये सब कुछ आपको मालूम होता तो आप मुझ पर गुस्सा करते, मारते मुझे, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया, मगर और कोई बात नहीं है। इसके बाद मजहर अली शाह बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, मायूस होता है अपनी बेटी से, क्योंकि वो अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा था। मजहर अली शाह कहता है कि बेटा मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था, तुम पर यकीन करने लगा था, मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ सिंसियर हो, मुझे कुछ नहीं छिपाती, मगर तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे बहुत अफसोस है तुम पर। हो सकता है कि इसके बाद सारा अपने बाप को सारी सच्चाई बता दे कि वहाँ पर सारा ने मुझे बचाया था, वहाँ पर ये सब कुछ हुआ था, मगर इसका बाप इस पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जो इसकी घटिया फुप्पो है ना, इसने घटिया सच्चाई बताई है इन्हें, घटिया झूठ बताया है इन्हें। तो इसके बाद वो अपनी बेटी पर यकीन नहीं करता, क्योंकि फुप्पो ने तो इसे कुछ और बताया और ये कुछ और बता रही है। तो इसके बाद मजहर अली शाह कहता है कि फिर से एक और झूठ, आखिर तुम मुझसे झूठ पर झूठ क्यों बोले जा रही हो, मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, वहाँ पर तुम्हें किसी लड़कों ने भी तुम्हें बचाया था और तुम कह रही हो कि ज़ारा ने तुम्हें बचाया है। इसके बाद ज़ारा कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ज़ारा नहीं बचाया था, मैं सच कह रही हूँ। इसके बाद सारा कहती है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, आप ज़ारा से पूछ लें, वो भी तो वहीं पर थी, उसी ने तो बचाया था मुझे। इसके बाद मजहर अली शाह कहता है कि मुझे किससे नहीं पूछना, लेकिन फिर भी सारा उसे ले आती है ज़ारा को वहाँ पर। ज़ारा भी उसे बताती है कि ये सारा बिल्कुल ठीक कर रही है, उस वक्त मैंने ही इसे बचाया था। मगर मजहर अली शाह कहता है कि तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रही हो, अगर तुम दोनों सच बोल रही हो तो मुझे कोई सबूत दिखाओ। इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं जब ज़ारा को ये मालूम होगा ये सब कुछ किया धरा विकी का है, विकी ने ही फुप्पो को सब कुछ झूठ बताया। तो इसके बाद वो विकी को ढूंढती है, उसे यहाँ पर ले आती है सारी सच्चाई बताने के लिए। जब विकी यहाँ पर आएगा सारी सच्चाई बताएगा मजहर अली शाह को, क्योंकि वो वैसे ही ज़ारा से डरता है। इसके बाद वो सब कुछ साथ साथ बक देगा। सब कुछ बकने के बाद इसके बाद मजहर अली शाह के सामने फिर से सब कुछ क्लियर हो जाता है, फिर से सारा और ज़ारा दोनों अपने बाप के करीब हो जाती हैं। मगर रह गई इस ड्रामा सीरियल की एंडिंग किस तरह होगी, ज़ारा और सारा की शादी किससे होगी, और फुप्पो की एंडिंग किस तरह होगी। फुप्पो की एंडिंग कुछ इस तरह होगी कि ये खुद अपने मुंह से सारी सच्चाई बकेगी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ज़ारा बहुत ज़्यादा चालाक है। ये अपनी चालाकी से फुप्पो को अपनी बातों में फंसा लेती है और बातों ही बातों में सारी बातें सामने आ जाती हैं। फुप्पो सब कुछ अपनी हकीकत अपने मुंह से बयान कर देती है, जिसके बाद मजहर अली शाह भी इसे घर से निकाल देगा। यही होगी फुप्पो की एंडिंग। और अगर बात की जाए सारा और ज़ारा की शादी की, ज़ारा की शादी होगी आदिल से और सारा की शादी होगी सरमद से। सरमद और सारा भी एक दूसरे को पसंद कर लेंगे उस वक्त जब सारा को ये मालूम होगा ज़ारा भी आदिल से मोहब्बत करती है, शादी करना चाहती है। अभी तो सारा ने ज़ारा को ये कहा है कि मेरी शादी आदिल से करवा दो, लेकिन ज़ारा भी क्या करती है, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर इन दोनों की शादी के पीछे लग जाती है, सबको राज़ी कर लेती है। सारा और आदिल की शादी भी होने वाली होती है। मगर यहाँ पर क्या ट्विस्ट आता है, जब शादी के आन मौके पर सारा को ये मालूम होगा कि ज़ारा और आदिल से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और आदिल ज़ारा से शादी करना चाहते हैं, ज़ारा भी आदिल से शादी करना चाहती है। शादी का वक्त आता है, शादी का टाइम करीब होता है, इसी वक्त दुल्हनें तब्दील हो जाती हैं। सारा की जगह ज़ारा और ज़ारा की जगह सारा बैठ जाती है। इसी तरह आदिल की शादी ज़ारा से और सारा की शादी सरमद से हो जाती है। तो इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी एंडिंग होगी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।